Welcome everyone to post contest discussion of Code Forces round 848 rated for division 2. We'll be starting our discussion from problem A. Shubham, you can share your screen and explain the problem A. Sir, in English or mix? Mix in Okay, sir. any language. Okay. So the first problem is flip-flop sum, and इसमें we have given an array in Screen which screen share screen share कर दो. visual है. अभी तक तो नहीं, रुको. हाँ, विजिबल. So first problem is flip-flop sum, and we have given an integer array, and only input provided are 1 and minus 1. Means array will contain only 1 and minus 1, and in one operation we can do it. We can choose AI, and for that operation will it will change the sign, like 1 will change to minus 1 and minus 1 will change to 1. So we have to calculate the maximum possible value of the array. So what we can do it, let us see the code. So first we will calculate the sum, total sum of the array, the given array, and then we will check for if there exists some conjugate to minus 1, like some array is given, for example this 1 1 minus 1 minus 1 minus 1. So we see that minus 1 comes two times. So in such cases we can see that we get uh, we get initial sum, by incrementing, like minus 1 will change to 1 and next minus 1 will change to 1. So there will be two subtraction and two addition, so total changes will be 4. So we will change the sum by 4, and we will set the flag as 1. If the flag is 0, then we will check for minus 1 and 1 consecutive. Like either we get minus 1 and 1 consecutive, or we get 1 and minus 1 consecutive. In such case, no changes in the initial sum will be detected. So we will print as it is. And next, if again the flag is 0, then we will check that how many ones are present and how many minus 1 are present. Like if there in this case only there will be two possibility, like if either there will be only 1, or either there will be only be minus 1. So if there will be 1, so in this case we will do a subtract 4 from the initial array. And if the all the numbers are 1 minus 1, then all the I mean not all, but all the numbers are minus 1, then we will increment the by 4. Hello यस. सर. हो गया ना तुम्हारा एक्सप्लेनेशन? सर ठीक था सर. हाँ हाँ, सही था. ओके, तो एक बार मैं भी अपना एक बार कोड दिखा देता हूँ ए वाले का. ओके, सो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था, तो उसके लिए दिखा देता हूँ मैं. मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ स्क्रीन भैया. विजिबल है. हाँ भैया बिल्कुल. ओके, सो प्रॉब्लम में दिया गया था कि n 10⁵ है, तो मैंने और हर कंसेक्यूटिव को मैं चेंज उनके फ्लिप कर सकता हूँ, मतलब a ऑफ i और a ऑफ i प्लस 1 को. तो मैंने एक फॉर लूप लगाया n-1 तक, क्योंकि मुझे i और i प्लस 1 तक देखना है. तो हर एक कंसेक्यूटिव में जाके देख रहा हूँ, और एक पहले सम वेरिएबल में सम स्टोर कर लिया, और फिर हर एक को फ्लिप करके देख रहा हूँ. मतलब पहले मैंने एक रेस्ट वेरिएबल बनाया जो कि सम के बराबर होगा, और उसके बाद उसमें से ai और ai प्लस 1 को माइनस कर दिया, और उसमें उनका
-1 से मल्टीप्लाई करके वापस ऐड कर दिया, तो वही हो गया ना फ्लिप वाला चीज़। और मैक्स आंसर में मैक्स स्टोर कर लिया रेस का जो मुझे मिल सकता है और उसको प्रिंट कर दिया, तो ये एक फॉर लूप में हो जाता है। क्योंकि मुझे ऑफ एंड में कर सकता हूँ, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो ये शायद ज़्यादा क्लीन लग रहा है। ठीक है, वो तुम्हारा भी सही था। ठीक है, प्रखर तुम बी वाला एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Yeah, so is it visible? Yes, visible. Yeah, so what was the problem given here? It was a problem like there will be two arrays given to you, one of size n, one of size m. The size n array will be a permutation of मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? हाँ, विजिबल है। Yeah, sure. So हाँ, दो अरेज दिए हैं, एक साइज n का, एक साइज m का। सो जो n वाला साइज का अरे है वो एक परम्यूटेशन है, लाइक एक से लेके n तक का उसमें कुछ परम्यूटेशन होगा। और जो m साइज का अरे है उसमें भी लाइक वो परम्यूटेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो परम्यूटेशन के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स को यूज करके बनाया गया है। सो बताना क्या है कि m वाले अरे पर ट्रैवर्स करना है, और अगर उनमें से सारे के सारे एलिमेंट, ये जो गिवन कंडीशन है, इसको फॉलो करते हैं तो वो एक गुड अरे हो जाता है, वरना वो नॉट गुड अरे नहीं। अगर सारे के सारे एलिमेंट फॉलो करते हैं तो इट इज नॉट अ गुड अरे। और अगर कोई एक एलिमेंट भी है जो कि इसको लाइक अनफॉलो करता है, लाइक इसको फॉलो नहीं करता, तो दैट इज अ लाइक गुड अरे। सो हम लोग को गुड अरे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ तो बेटर रहेगा। हाँ, ये सबसे पहले तो इनपुट लिया एन एम और डी का, फिर अरे का इनपुट लिया। उसके बाद जो अरे में परम्यूटेशन गिवन है उसके उनका जो इंडेक्सेस है उसको एक मैप में स्टोर कर लिया। फिर जो दूसरा वाला एम साइज का अरे उसका इनपुट ले लिया। अब क्या किया कि एक वेक्टर बनाया टेम्प करके। अब लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं इस टेम्प के अंदर ये चेक कर रहा हूँ कि जो हम लोग के एम साइज का जो अरे रहेगा और उसके जो एलिमेंट्स रहेंगे उनका जो इंडेक्स रहेगा वो टेम्प के अंदर स्टोर होता जाएगा। और ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हुआ तो हम लोग को सीधे 0 रिटर्न कर देना है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ही गुड है, तो उसको और चेंज करने की जरूरत। तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो इंक्रीजिंग है, सॉरी अगर वो डिक्रीजिंग या इक्वल कुछ केस बना तो मैं सीधे एक 0 रिटर्न कर दूंगा। या अगर वो इंक्रीजिंग है पर वो दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है कि जो आई प्लस वनथ इंडेक्स पे एलिमेंट है उसका पोजीशन ith इंडेक्स वाली पोजीशन से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी बात जो ith पोजीशन का जो नंबर है उसमें डी जोड़ने पर जो नंबर आएगा उससे ये छोटा होना चाहिए। सो ये दूसरी कंडीशन है। तो मैं इन दोनों कंडीशंस को चेक कर रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई भी अगर अनफॉलो टाइप होती है, लाइक फॉलो नहीं करती है, तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा, वरना उसको टेम्प के अंदर डालता जाऊंगा। तो टेम्प हम लोग को एम साइज का एक वेक्टर मिल जाएगा जो जिसके अंदर हमेशा इंक्रीजिंग एलिमेंट रहेंगे। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि हर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो काम कर सकते हैं इसके ऑर्डर को ब्रेक करने के लिए। पहला काम क्या कर सकते हैं कि जो आगे वाला एलिमेंट है उसको हम लोग पीछे ले आए, या उनके बीच का जो डिस्टेंस है जो गिवन नंबर डी है उससे ज्यादा कर दें। तो इनमें से केवल दो ही काम लोग कर सकते हैं। तो उसको पीछे लाने के लिए, मतलब उनके पोजीशंस को स्वैप करने के लिए कितने मूव्स चाहिए होंगे? ऑफ कोर्स C+1, क्योंकि C उनके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनका है, तो C+1 मूव चाहिए। या हम लोग को उनके बीच की डिस्टेंस D से ग्रेटर करने के लिए कितने मूव्स चाहिए? तो D में से C को घटा देंगे, तो हम लोग को इतने ही मूव्स चाहिए, D माइनस C। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम में पूछ रहा हूँ कि क्या D माइनस C मूव करना वैलिड भी है या नहीं, क्योंकि अज्यूम करते हैं कि इसको समझना बहुत आसान है वैसे कि वैलिड है या नहीं। मान लो कि जो दोनों एलिमेंट्स हैं एकदम एजेस पे हैं, मतलब एक एरे के स्टार्टिंग में है, एक एरे के एंडिंग में है।
तो अब क्योंकि स्टार्टिंग वाले को और पीछे नहीं ले जाया जा सकता और एंडिंग वाले को और आगे नहीं ले जाया जा सकता, तो वो इनवैलिड हो गया। तो बस मैं वही चेक कर रहा हूँ कि उनके पीछे कितने एलिमेंट्स बाकी हैं, जो कि पिछले वाले जो पोजीशन होगा उसके इंडेक्स के बराबर ही होगा, और उसके आगे कितने एलिमेंट्स हैं। तो n में से घटा देंगे उसका पोजीशन और एक और घटा देंगे, क्योंकि 0 बेस इंडेक्स रखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आगे कितना है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग के टोटल वैलिड मूव्स मिल जाएंगे। अगर वो c से ज्यादा है तो मतलब हम लोग बिल्कुल उनके बीच के डिस्टेंस को c से बढ़ा सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर c से भी उसको कंपेयर कर रहा हूँ, और फिर इस तरह से जब सारी कॉन्सिक्यूटिव पोजीशंस पे कंपेयर कर लेंगे तो हम लोग को आंसर में हम लोग का मिनिमम आंसर मिल जाएगा। और जो इनफाइनाइट है ये लाइक बहुत बड़ी कोई वैल्यू है, मैंने इसको लिया है। सो इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन था। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है इसमें, या किसी का कोई अलग सोल्यूशन है तो वो शेयर भी कर सकता है। ओके, सो आई थिंक बी वाला भी क्लियर ही है और सबका सिमिलर ही अप्रोच था ऑलमोस्ट। ओके, तो मैं सी वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, सो सी प्रॉब्लम में हमें दिया गया था कि हमें दो स्ट्रिंग दी गई हैं, एक स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, और दोनों स्ट्रिंग का लेंथ n है। और एक जो इम्पोर्टेंट कंडीशन हमें दी गई थी कि वो देर आर एट मोस्ट 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग ए, मतलब 10 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स एट मोस्ट ए स्ट्रिंग ए में। अब हमारे पास एक सेट है Q जो कि एम्प्टी है इनिशियली। नाउ हम ऑपरेशंस कर सकते हैं ऑन स्ट्रिंग ए एनी नंबर ऑफ टाइम, और वो ऑपरेशन क्या है कि हम एक इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे i और एक लोअर केस लेटर सेलेक्ट करेंगे c, और a ऑफ i जो अभी था उसको सेट में डाल देंगे और a ऑफ i को रिप्लेस कर देंगे, जो हमने सेलेक्ट किया लोअर केस इंग्लिश लेटर c उससे रिप्लेस कर देंगे। और ऐसा हम कितनी बार भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारे पास सेट q है उसमें एटमोस्ट k डिफरेंट कैरेक्टर्स रहने चाहिए। ऐसा जितने बार हम ऑपरेशंस करेंगे उसके बाद एटमोस्ट के डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकती हैं क्यू में। और हमें ये कहना है निकालना है ऐसा करने के बाद कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स जो a और b में इक्वल है। सबस्ट्रिंग का मतलब है कि a l r टू b l r, मतलब a ऑफ l से लेके a ऑफ r तक की जो सबस्ट्रिंग बनेगी वो b ऑफ l से b ऑफ r के बीच में जो सबस्ट्रिंग बनेगी वो इक्वल है। तो अगर ऐसी कितनी सारी सबस्ट्रिंग्स है तो ऐसा हमें निकालना था। तो इसके लिए हम एक चीज है कि लास्ट अगर Q हमारे पास सेट है, अगर उसमें लास्ट में k डिफरेंट कैरेक्टर्स रह सकती हैं, इसका मतलब कि मैं जो मेरे पास स्ट्रिंग a है उसमें जो ऑपरेशन करूंगा वो सिर्फ k डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए ही कर सकता हूँ मैक्स टू मैक्स, क्योंकि अगर मैं किसी एक कैरेक्टर पे वो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो वो क्यू में चला जाएगा, तो क्यू सेट का साइज बढ़ जाएगा अगर वो एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। तो ऐसे के डिफरेंट कैरेक्टर्स ही मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ए में से। फर्स्ट थिंग ये है। सो इसमें मैंने एक्चुअली ब्रूट फोर्स ही पास हो जाता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जो स्ट्रिंग ए है उसमें सिर्फ एटमोस्ट 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते थे। तो एक बार मैं सबमिशन से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनपुट लिया है, उसके बाद मैंने सेट बनाया एस, और सेट में मैंने स्टोर किया है कि कैरेक्टर्स, मतलब ए में कौन से कैरेक्टर्स हैं, मुझे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स निकालने थे कौन से हैं, तो मैंने सेट में डाल दिया, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन से। अच्छा, मेरा स्क्रीन फ्रोजन है क्या? फ्रीज हो नहीं गया नहीं आई थिंक। सर। सबमिशन विजिबल है मेरा? हाँ विजिबल है। ओके, तो सबसे पहले मैंने इनपुट लिया है, उसके बाद मैंने एक सेट बनाया एस। अब सबसे पहले मैंने एस में सारे कैरेक्टर्स का डाल दिया ए के, तो इससे मुझे सेट, क्योंकि अब सेट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स को लेता है तो मुझे पता चल जाएगा कि ए में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं एस डॉट साइज से। अब उसको मैंने एक वेक्टर में डाल दिया। अब क्योंकि वेक्टर को ट्रेवर्स करना थोड़ा इजी हो जाता है तो उस जो डिस्टिंक्ट है उसको मैंने सी में डाल दिया। उसका रीजन है वो बताऊंगा। अब मान लो फर्स्ट चीज जो मैंने किया है कि अगर मेरे पास जो लिमिट दी गई है के, लिमिट क्या थी कि जो फाइनल सेट है मेरे पास क्यू उसमें मैक्स टू मैक्स कितने
डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर वो लिमिट ही मेरे पास जो ए में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है उससे ज़्यादा है, अगर वो लिमिट उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं हर एक कैरेक्टर को चेंज कर दूँगा ताकि वो बी के बराबर बन जाए। तो अब मैं एग्ज़ाम्पल की तरह दिखाता हूँ एक बार। लेट्स से ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ओके। तो इस एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें तो लिमिट हमें 1 दिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैक्स टू मैक्स एक कैरेक्टर को मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने देखा कि क्या ए कैरेक्टर को मैं चेंज करने से कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए जहाँ पे है, ए फर्स्ट पोज़ीशन पे है और बी के फर्स्ट पोज़ीशन पे भी ए ही है, तो मैं ए को क्यों चेंज करूँगा? सेम फॉर बी, बी को भी चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट सी, अगर मैं सी कैरेक्टर को चेंज करूँगा, सपोज़ मैंने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ये था कि इस वाले सी को मैंने डी बना रहा हूँ, तो मेरा सेट क्या हो जाएगा? सेट में सी चला जाएगा और लिमिट भी एक ही थी, तो ये स्ट्रिंग भी बन जाएगी ए, बी, डी। अब पहली बात ये कि अगर एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों इक्वल है, तो इसमें नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कितने हो सकते हैं? क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, तो इनमें सारे सब स्ट्रिंग्स इक्वल ही होंगे। तो कोई भी एक स्ट्रिंग n साइज़ की है, तो उसमें नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये तो एकदम सिंपल चीज़ है, तो ये तो आई थिंक सबको क्लियर ही है कि अगर एक n साइज़ का स्ट्रिंग है, तो उसमें n इंटू n प्लस 1 बाई 2 नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग हो सकती हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने चेक किया है कि क्या मेरी जो लिमिट दी गई है, वो मेरे पास जितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उससे ज़्यादा है। तो अगर उससे ज़्यादा ही है, तो मैं डायरेक्टली n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मान लो इसमें मेरी जो स्ट्रिंग दी गई थी ABC, इसमें 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। लेट्स से K 4 हो जाता। तो अब मेरे पास एबीसी है, तो मैं हर एक को, अब लेट्स से एबीसी भी नहीं, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। मैं पहले एक्स को सेलेक्ट करूंगा, उसको ए में बदल दूंगा, वाई को सेलेक्ट करूंगा, उसको बी में चेंज कर दूंगा, इस जेड को सेलेक्ट करूंगा, डी डी में चेंज करूंगा, और जो मेरे पास सेट क्यू था, सेट क्यू वो क्या हो जाएगा? वो ऐसा रहेगा। इस केस में एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब क्योंकि मैं, मेरे पास ए में कैरेक्टर्स ही, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ही 3 थे, तो क्यू का मैक्सिमम साइज़ ही 3 हो सकता है और मेरी लिमिट ही 3 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं पूरा एग्ज़ैक्ट बना सकता हूँ ए को बी के बराबर। तो इसका मतलब मैं आंसर हमेशा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कर सकता हूँ। और लेट्स सपोज़ ये ऐसा केस नहीं है, k डिस्टिंक्ट कैरेक्टर से छोटा है। तो इसमें मैंने, लेट्स सपोज़ एक थोड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, a, x, सी, डी, ई, एफ, सपोज इतना बड़ा एग्जांपल लिया मैंने। बी अभी लेट सपोज नहीं ले रहे हैं, तो मेरे पास इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिफरेंट कैरेक्टर। डी सपोज 6 है, 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स, और मुझे, मेरी लिमिट है 4 की। तो जो जो 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनमें से ऐसे 4 को मैं सेलेक्ट करूं जिनको मैं चेंज करूंगा, और उनको चेंज करने के बाद मेरे पास स्ट्रिंग क्या बन जाती है। और सब एक और चीज़ है, सपोज़ ऐसा है, सी को हटा देता हूँ, ए बना देता हूँ और 5 है ये, ओके। और बी जो मेरा है वो ऐसा है, ए, ए आर, ए आर एफ और मे बी डी, ई, ई, एफ। नाउ ये ए और ये ए बराबर है, तो जब मैं ऑपरेशन करूँगा, तो मैं इस जब भी अगर ए को मुझे चेंज करना भी होगा, तो भी मैं इस वाले को नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। जबकि ये वाला ए और ये वाला इस पोज़ीशन पे जो है वो ए है यहाँ पे और यहाँ पे डी है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इस वाले को मैं चेंज करूँगा। तो अगर लेट्स सपोज़ मेरे लिमिट है मेरी 4 और मेरे पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है 5, तो मुझे कोई 4 ऐसे कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनको मैं चेंज करूँगा। तो वो हो सकता है कि मैं ए, एक्स, डी, ई को चेंज करूँ, या फिर हो सकता है मैं ए, डी, ई, एफ को करूँ। ऐसे कितने को भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्रूट फ़ोर्स 2 टू द पावर n में निकाल लिया। मतलब 2 टू द पावर में हम निकाल सकते हैं, सारे का सबसेट निकाल सकते हैं। ये तो मतलब डीएफएस से हम कर सकते हैं ना, कि अगर हमें n डिस्टिंक्ट चीज़ें दी हैं, उनमें से मुझे k डिस्टिंक्ट चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो मैं ब्रूट फ़ोर्स 2 टू द पावर k वाला सॉल्यूशन लगा सकता हूँ। और क्योंकि इधर क्वेश्चन में दिया गया है कि एट मोस्ट 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स ही होंगे ए में, तो इसका मतलब मैक्स टू मैक्स 2 टू द पावर 10 होने वाला है, व्हिच इज़ अराउंड 10 टू द पावर 3, तो ये पास भी हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि सेट में इंसर्ट किया, चेक किया कि कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स है, चेक किया कि क्या वो k उससे बड़ा है, तो n इंटू n। उसके बाद क्या किया, एक रेस वेरिएबल, ये तो मैंने डीएफएस के लिए बनाया है, ये रेस
रेस वेक्टर ऑफ वेक्टर रेस क्या स्टोर करेगा? सारे सबसेट। लेट्स सपोज मेरे पास स्ट्रिंग है ABC, ABC के सारे सबसेट, ABC के सारे सबसेट और लिमिट 2 है, तो क्या 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 होंगे? AB हो सकता है, AC हो सकता है और BC हो सकता है। क्योंकि लिमिट 2 है, 2 कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं, AB को सेलेक्ट किया या AC को सेलेक्ट किया या BC को सेलेक्ट किया। ये 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये वेक्टर ऑफ वेक्टर में स्टोर रहेगा रेस में, ये डीएफएस लगाने के बाद। मैंने 2 टू द पावर k में कर लिया और ये वेक्टर ऑफ एडीजे बनाया। अब ये क्या स्टोर करता है कि ए कहाँ-कहाँ पे है? मतलब अब मुझे चेंज करना है, ए को किसी में सेलेक्ट चेंज करना है, तो मुझे पता तो होना पड़ेगा कि ए कौन से इंडेक्स पे है और ऐसे ए को लिया है जो बी ऑफ आई के बराबर नहीं है। अब लेट्स सपोज ये है और बी ये है, ए डी सी। अब ये ए और ये ए तो इक्वल ही है, तो मैं इसको चेंज क्यों ही करूंगा? तो ये सिर्फ उन्हीं ए ऑफ आई को लिया है जो कि बी ऑफ आई के बराबर नहीं है। तो ए डी जे ऑफ ए ऑफ आई माइनस ए डॉट पुशबैक आई, इसका मतलब है कि मैंने ये वाला कैरेक्टर कहाँ आ रहा है वो पुशबैक कर दिया है। बस ए डी जे ये जो ये है ये सिर्फ ये स्टोर करता है कि ये वाला कैरेक्टर ए में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई हो रहा है। तो ये एडीजे में स्टोर है। नाउ मैं अब यहाँ से शुरू होता है कि मैंने आंसर वेरिएबल बना दिया। अब मैंने फॉर लूप लगाया रेस में। रेस क्या स्टोर किया था? सारे सबसेट। अब मेरे तो इसका मतलब एम्परसेंड आई क्या स्टोर कर रहा होगा? आई स्टोर कर रहा होगा कोई भी एक पर्टिकुलर सबसेट। अगर रेस में ए बी ए सी और बी सी है तो ये ट्रेवर्स करेगा फर्स्ट ट्रेवर्सल में ए बी को, फिर सेकंड ट्रेवर्सल में ए सी को, फिर बी सी को। तो फर्स्ट ट्रेवर्सल में सपोज में आ गया ए बी, तो अब एक और लूप गया। अब ये जे क्या स्टोर करेगा? फर्स्ट कैरेक्टर ए, सेकंड कैरेक्टर बी। और मैं क्या कर रहा हूँ ये वाले फॉर लूप में कि जहां जहां ए आ रहा है उधर चेंज कर दे रहा हूँ। क्यू स्ट्रिंग जो है वो ए के बराबर हर बार बना रहा हूँ और उसमें जहां जहां ए आ रहा है उसको मैं बी मतलब ए, अगर मेरे स्ट्रिंग ए में आई इंडेक्स पे डी है और स्ट्रिंग बी पे आई इंडेक्स पे ई है, तो मैं डी को ई में चेंज कर दूंगा ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए। नाउ अब सपोज मैंने क्यू को चेंज करके कुछ बन गई, कुछ मतलब चेंजेस हो गए हैं उसमें। अब मुझे बस काउंट करना है कि अगर ये चेंजेस हुए हैं, ये वाले मतलब लेट्स सपोज मैंने ये वाली सबसेट को सेलेक्ट किया है, तो ये सबसेट सेलेक्ट करने पे मेरा आंसर क्या आ रहा है? ये सबसेट सेलेक्ट करने पे क्या आंसर आ रहा है? ऐसे करते-करते सारे सबसेट के लिए चेक करूँगा कि ये वाला सेलेक्ट करने पे आंसर क्या है, ये वाला करने पे क्या है, ये वाला करने पे क्या है और इनमें से जो मैक्सिमम मिल जाएगा वो मैं प्रिंट करने वाला हूँ। तो वही किया। तो लेट्स सपोज मैंने चेंजेस कर दिए, क्यू में चेंजेस कर दिए हैं, तब मुझे आंसर कैसे निकालूंगा? वही है कि मैं एक काउंट वेरिएबल सेलेक्ट किया, जब तक कि क्यू ऑफ जे इक्वल टू बी ऑफ जे होगा मैं काउंट प्लस प्लस करते जाऊंगा। जिस मोमेंट पे मुझे दिखेगा कि काउंट इक्वल नहीं है तो काउंट इनटू काउंट प्लस 1/2 करूंगा और काउंट इक्वल टू 0 कर दूंगा। ये सिंपल चीज है। सपोज मैं दिखा देता हूँ, ए बी सी, उसके बाद यहाँ ई है, यहाँ डी है, उसके बाद फिर से ए बी सी और फिर से ए बी सी। तो यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है। तो इस 3 साइज के जो सबस्ट्रिंग है उनके जितने अंदर में जितने भी सबस्ट्रिंग होंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो इसको मैं एक 3 साइज का स्ट्रिंग मान के 3 इंटू 3+1/2 कर लूंगा और ये वाला जैसे इक्वल नहीं मिलेगा वापस काउंट को 0 कर दूंगा। फिर से जब ये यहाँ पहुंचेगा फिर काउंट 3 हो जाएगा, फिर से ऐड कर दूंगा। तो वही चीज किया है यहाँ पे। तो वही है। तो बस ऐसा y में स्टोर कर लिया और फिर आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा y, ऐसे हर एक सबसेट के लिए चेक किया और फिर सी आउट आंसर कर दिया। और ये पास क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो ये वाली चीज थी ना कि एटमोस्ट 10 कैरेक्टर हो सकते हैं, तो जब मैंने ब्रूट फोर्स लगाया है ये वाला, तो ये वाला तो बैक ट्रैकिंग से सिंपल कर दिया। तो ये होता है 2 टू द पावर k और यहाँ पे k हमारा 10 के आसपास था, तो 10 टू द 3 इसलिए पास कर गया। तो वही था बस। आई थिंक ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था आज। किसी का कुछ अलग अप्रोच या किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मुझे बी क्लियर वाले ही में है? एक था। हेलो, हाँ, बी वाले में बोलो।
सो जब प्रखर ने जब ये किया था कि मतलब 2 ही ऑप्शंस था कि या तो आप वो एआई के आगे चले जाओ या तो आप उसको बढ़ा दो, दूसरे वाले को बढ़ा दो और दोनों में से मिनिमम हमको लेना था। सो लेकिन जब भी हम लोग इन दोनों को एडजस्ट हाँ करते हैं तो बाकी एलिमेंट्स का भी पोज़ीशन चेंज होता है राइट परम्यूटेशन में? तो वो हैंडल हो रहा है? हाँ, वो हैंडल हो रहा है क्योंकि थिंग इज कि मैं हर एक अभी जब भी मुझे क्वेश्चन में दिया गया था कि हुँ। गुड और नॉट गुड सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट से डिफाइन होगा। मतलब कि मेरे पास एरे एरे दिया हुआ है सपोज ये 2 3 6 मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, हाँ। हाँ, तो सपोज ये वाला दिया है तो गुड है या नहीं है सिर्फ ये 2 3 3 6 से डिसाइड होगा। 2 3 और 3 6 क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एलिमेंट है। इस वाले में 2 6 और 6,5 से। अब जब मैं ये देख रहा हूँ कि 2 और 6 की पोजीशन को मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ कि ये गुड बन जाए, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एरे में चेंजेस कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर इनको गुड बनना है, मैं समझ में आ रहा है कि मैं चेंजेस एक्चुअल में नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनको देख रहा हूँ कि इनको बनाने के लिए कितना लग रहा है, फिर सेकंड 2 एडजेसेंट को बनाने में कितना लग रहा है, फिर उसके नेक्स्ट वाले बनाने में कितना लग रहा है, इस वे में कर रहा है। और फिर फाइनली जो सबसे मिनिमम वाला है वो ले रहे हैं। मतलब क्योंकि एक एडजेसेंट एलिमेंट ही काफी है ना उसको गुड बनाने के लिए। हुँ, ये हुँ। समझ में आता है? मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक एडजेसेंट एलिमेंट मतलब उसके चीज को सेटिस्फाई करे। सिर्फ एक ही एडजेसेंट एलिमेंट्स काफी हैं उसको गुड बनाने के लिए। सारे का जरूरी नहीं है, इसलिए हम हर एक के लिए चेक कर रहे हैं। तो ये क्लियर है ना? यप। ओके। मुझे सी लगा में था तो किस हाँ मुझे बोलो। लगा था कि हर एक एलिमेंट के लिए वो कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत लोग गलत पढ़ा दो। हाँ आई थिंक बहुत लोग ने वही गलत पढ़ा होगा। ठीक है कोई नहीं। तो मैं हर बार जब हम या तो आगे लेके जाते थे या तो उसको उसका डिस्टेंस बढ़ाते थे, तो मैं हर बार उसमें मैप में चेंजेस करता था दूसरे पोज़ीशंस के लिए भी, जो एलिमेंट वो दोनों के रेंज में आते हैं। तब तो काफी टफ हो गया होगा, लाइक क्वेश्चन रीड करने में प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो अब ये सी वाले में तो किसी को डाउट नहीं है ना? ओके तो फिर हम रैप कर सकते हैं यहीं पे। भैया क्वेश्चन 1 में मेरे को एक बार डाउट था। हाँ एक सेकेंड मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ उसके बाद पूछना, ठीक है? ठीक है ठीक है। एक सेकेंड। हाँ